Hello students, welcome to multidimensional studies, and for today our topic is rational and irrational numbers. So before discussing about rational and irrational numbers, we will have to study about certain terms, that is set, natural numbers and negative integers. So first we will discuss about the set. We first define set, which will be used in discussing rational and irrational numbers or the real numbers. हमें set के बारे में जानना पड़ेगा कि set किसे कहते हैं before discussing about rational and irrational number. तो first one is set. A set is a well defined collection of distinct object. एक set जो है एक बहुत अच्छी सी collection हो सकती है किसी भी तरह के different objects की, जिसकी एक particular set के अंदर grouping की जा सके. सेट मे बी ऑफ एनी काइंड, जो सेट है वो किसी भी तरह का हो सकता है. एंड ईदर फॉर एग्जांपल नंबर्स, लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एट्सेट्रा. द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. किसी भी पर्टिकुलर सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स या फिर उस पर्टिकुलर सेट के मेंबर्स कहते हैं. ओके, द ऑब्जेक्ट्स मे बी इन एनी ऑर्डर. जो भी चीज़ें हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट में, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं. इट मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर, मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और इट मे बी इन एनी काइंड ऑफ ऑर्डर. एंड नन ऑफ दैम इज़ रिपीटेड इन द सेट. जो भी चीज़ है, ये जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप जो अल्फ़ाबेट्स का या नंबर्स का जो सेट है, वो रेपिटेशन में नहीं होगा. एवरी डिजिट इज़ टेकन ओनली वन टाइम. दस द कलेक्शन 1 2 3 4 of different integers is a set, but the collection of, that is 1 2 2 3 4 3 5 is not a set, because here is the repetition of the words. That's why it is not considered as a set. So we have studied about set, that set is a well defined collections of different distinct objects, and it may be the collections of numbers, or maybe the letters, or maybe any kinds of thing. And there are two conditions for being anything in a set form, that is it may be in any order, and second one is none of them is repeated. Okay, now our next topics, we are going to discuss our next topic, that is natural numbers. So what are natural numbers? For counting, those numbers we use for counting, they are called as natural number. तो for counting we use the symbols. जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वन. जब कभी भी हमने काउंट करना तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, तो दीज सिम्बल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स और द पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. तो फॉर दिस वी विल डिस्कस व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. तो हेयर लाइज द नंबर लाइन. आपने इनको 6th स्टैंडर्ड में या 6th 7th स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. तो हेयर लाइज सेंटर में आपने ज़ीरो ऐसे टीचर समझाते होंगे, आपको याद होगा. एंड फ्रॉम ज़ीरो टूवर्ड्स द राइट साइड, दिस इज़ द राइट साइड. here lies 1 2 3 and 4. तो these all integers are called as, these जो भी ये सारे symbols हैं, इनको आप कहते हैं positive integers. because they lies toward the positive side, okay, right side. and also called as natural numbers. क्या कहते हैं इनको आप, natural numbers. okay, so this is all about natural numbers. when we denote a certain kind of group of these natural number, that is 1 2 3 4. अगर हमने इसको दर्शाना हो एक पर्टिकुलर सिंबल से इस पर्टिकुलर ग्रुप को, तो हम इसको डिनोट करते हैं n से. or you can also use it I positive. here I stand for integers and positive for positive integers. okay, you got it. now our next topic is what are negative integers. for negative integers, from 0 towards the left side, this is the left side, number lies -1 -2 -3 -4. okay, these all integers are called as negative integers. क्या कहते हैं इनको आप, negative integers. okay, the group of negative integers, that is -1
-2, -3 can be denoted by a symbol that is I negative. Okay. Now next question is, what are integers? Okay. The symbols, the definitions of this is the symbol like 0, पॉजिटिव नेगेटिव डबल दोनों की फॉर्म में आपके पास +1 -1 3 4 दिस होल ग्रुप ऑफ इंटीजर, दिस होल ग्रुप ऑफ सिंबल जो है जिसमें आपके डबल सिंबल आएंगे प्लस माइनस की फॉर्म में आपका 1 2 3 4, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को आप इंटीजर्स कहेंगे। ओके। और इंटीजर्स को जो सिंबलाइज करते हैं, जब आपके पास कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ जो संख्या हो जिसमें आपके पास +1 और -1 सबका इकट्ठा ग्रुप हो, तो उसको आप कहेंगे इंटीजर्स। और इसको आप सिंबलाइज करेंगे z के साथ। किससे सिंबलाइज करेंगे? z से। यू कैन यूज ईदर z और i। ओके। तो दिस इज अबाउट natural numbers and negative integers and also about positive. Now our topic is rational number. Rational numbers. Any number which can be expressed in the form of P/Q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें। एंड सेकेंड कंडीशन इज P and Q are the integers। P और Q जो हैं इसके अंदर वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इट में भी जैसे हमने पहले पढ़ा इंटीजर्स में, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स आ जाते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं जब आप इस किसी भी इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लेंगे। ओके। एंड द थर्ड कंडीशन इज दीज डिजिट्स, दैट इज जो भी आप इंटीजर्स लेते हैं P/Q की फॉर्म में, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कोई नहीं होगा। दैट इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा P/Q की फॉर्म में जो जितने भी डिजिट्स हैं जिनको आप लिख सकें, ठीक है, वो आपके रह सारे। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं 1। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आपने इसको पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर 1 है तो आपने उसमें नीचे आपका आप Q की फॉर्म में उसको 1 ले सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर है, आप उसका जो डिनोमिनेटर है 1 लगा सकते हैं एनी नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है। अगर आपको 0 दे रखा है तो P की फॉर्म में तो आप जो इसको ले सकते हैं P की फॉर्म में 0, या इट मीन्स जो P की वैल्यू है आप 0 भर सकते हैं। एंड जो Q है कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये नेक्स्ट कंडीशन जो हो जाती है आपकी P/Q की फॉर्म में। जब आप रैशनल नंबर्स लिखते हैं तो Q जो है वो आपका 0 कभी नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है इसके लिए। ओके। तो यहाँ पे जब आपने इसका इंटीजर्स लिया, दैट इज़ P की वैल्यू आपने 0 ले ली क्योंकि आपको 0 दे रखा है, तो आप इसको नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या बन जाता है? जो 0 है आपका क्या बन जाता है? रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जैसे 2 है तो आपको 2/1 की फॉर्म में जिसको आप लिख सकें, या -2 है, -2 को भी आप -2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऑलरेडी 2/3 दे रखा है, ठीक है। ओके। 2/3 है, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर? देखो
2 है, इसके लिए अगर आप फैक्टर बनाते हो तो 2 या तो फिर खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब 3 के देख के चेक करके हम 3 के फैक्टर्स या तो 3 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर अगर ढूंढने लगे हम तो ये एक सेट ऑफ कॉमन फैक्टर बनता है। ये दोनों आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स 2/3 जो है वो क्या है, आपके रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट आप ले लेते हैं जैसे 4/3। यहाँ पे आपके फैक्टर बन जाते हैं 2 भी, 2 बन जाएगा फैक्टर इसके साथ 4 के लिए, 4 इटसेल्फ भी हो सकता है या फिर 1। ओके, नीचे आपके पास 3 और 1। तो बाकी कॉमन फैक्टर इन दोनों में, इन ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ 2 है नहीं हमारे पास, यहाँ 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, 4 है तो यहाँ 4 नहीं है। कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। इट मीन्स 4/3 जो है रैशनल नंबर है। तो आप उसके फैक्टर्स को कंपेयर करके आप संख्या का पता लगा सकते हैं या किसी भी डिजिट्स का पता लगा सकते हैं कि क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ओके, फर्दर कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं रैशनल नंबर्स के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। एज आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, दैट इज़ फॉर एनी रैशनल नंबर द quantity must be written in the form of P upon Q, where P and Q are the integers. Okay, it means पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, दोनों तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो ऑल्सो, क्योंकि इंटीजर्स में हमने पहले पढ़ा कि ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। बट जो ज़ीरो है आपकी, ज़ीरो डिजिट है, it can never be at denominator. Okay, which means Q जो है आपका कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। Q की जगह आप जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो Q की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है Q कैन नेवर बी रिटन एज नेगेटिव, विच मीन्स जैसे आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो -2/3 आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस सेंटर में -2/3। आप इसको कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते 2/-3, इट्स रॉन्ग। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। फॉर फर्दर टॉपिक्स फॉर टुमारो we will going to discuss about the various operations of these rational numbers. ओके, वेयर 4 टाइप्स ऑफ मेन ऑपरेशंस आएंगे इसमें जो हम कल पढ़ेंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर्स, एंड सेकेंड वन आएगा आपके पास सब्ट्रैक्शंस, थर्ड वन इज इट्स मल्टीप्लिकेशंस, and fourth one is its division. So these 4 operation we will discuss tomorrow. This is all for today. I hope you enjoy the topic and like my video, and also hopefully you will be subscribe and share my video. Okay, have a nice day.